Once again, what is intertropical convergence zone? Ma'am, I can. Yes. The intertropical convergence zone is a board through a low Broad. pressure in Just a minute. Wait. Broad trough. B-R-O-A-D. Broad broad trough. trot Trough. in of T-R-O-U-G-H. Trough. now. The intertropical convergence zone is a broad trough of Trough. low low pressure in equatorial latitudes. This is where the northeast and the southeast trade winds converge. This converge, this converge, this convergence zone lie more or less parallel to the equator, but moves north or south with the apparent movement of the sun. Hmm. So you have seen the diagram of alternate pressure belt, alternate air pressure belt of the globe, and you have also seen the location of the northeast trade wind and the southeast trade wind. The northeast trade wind converges with the southeast trade wind in the equatorial low pressure zone. And this equatorial low pressure zone is also known as ITCZ because here the northeast trade wind and the southeast trade wind merge or mix. Okay, and this convergence zone shifts according to the apparent movement of the sun. If the apparent movement of the sun is northward in the northern hemisphere, then the ITCZ shifts northward. And if the position of sun is southward in southern hemisphere, then the ITCZ Northward. moves southward. Okay, so you have understood this. Okay, What's ma'am. one more factor? Besides all these 5 factors, there is one more factor which which influences Yes, the ma'am. monsoon. Okay. वहां से हटो Besides these 5 factors, there is one more factor which sometimes Yes, ma'am. influences the monsoon. Okay, Hare Ram, no noise should come from your side. And if there is some noise, you mute your mic. And what is the 6th factor? You can say this 6th factor. The name of the 6th factor is southern oscillation. Okay. What is the 6th factor? Say. Southern oscillation. What is the spelling of oscillation? OSILATION. Southern oscillation. What is general condition in the southern oceans? Southern oceans means southern Indian Ocean and southern Pacific Ocean. Okay. Yesterday I have shown you a map drawn on the board. I don't know whether it was very clear or not, but I tried to show you the diagram or the map. Okay. What is southern oscillation? Today you start reading from here. Apart from this. Manya, start reading. All other will listen. Apart from this, it has also been noticed that changes in the pressure condition over the southern oceans also affect the monsoons. Normally, when the tropical eastern South Pacific Ocean experience high pressure, the tropical eastern Indian Ocean experiences low pressure, but in certain years there is a reversal in the pressure conditions and the eastern Pacific has lower pressure in comparison to the eastern Indian Ocean. This periodic change in pressure conditions is known as the southern oscillation. ठीक है? एक मिनट रुक जाओ. ये सदर्न ओशन से क्या मतलब है बताओ. सदर्न ओशन का मतलब होता है कि इक्वेटर
लाइन ऑफ इक्वेटर है ना 0 डिग्री, उसके साउथ में जो भी ओशन पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, सदर्न Southern ओशन। Oscillation. तो इंडियन ओशन का भी सदर्न पार्ट हो गया इक्वेटर के साउथ में, है ना, जो कि Yes, इंडिया ma'am. के सदर्न पार्ट Yes, में, ma'am. है ना। और Yes, ma'am. इधर ऑस्ट्रेलिया की और ईस्ट की तरफ देखोगे तो उधर पैसिफिक का सदर्न पोर्शन हो गया, है ना। इक्वेटर के नॉर्थ में जो पैसिफिक है उसको नॉर्दर्न पैसिफिक बोलते हैं। और मैम यहाँ का क्लाइमेट भी पूछता है एग्जाम में। में जो पैसिफिक का पार्ट है उसको सदर्न पैसिफिक कहते हैं। बोलो, which part is known as northern Pacific Ocean? मैम ऑस्ट्रेलिया। No. मैम नॉर्थर्न। Northern, there is a very big ocean named as Pacific Ocean. So what do you mean by the northern Pacific Ocean and the southern Pacific Ocean? मैम North of equator, the Pacific Ocean, which is on the north of equator, is known as northern Pacific Ocean. Then what is the southern Pacific Ocean? South of the equator, the Pacific Ocean is called Southern Pacific Ocean. Now here in Southern Oscillation, we are talking about the Southern Pacific Ocean and the Southern Indian Ocean. ठीक है, सदर्न ऑसिलेशन में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि सदर्न इंडियन ओशन में और सदर्न पैसिफिक ओशन में एयर प्रेशर का डिफरेंस कैसा रहता है, ठीक है ना। क्योंकि जब सदर्न पैसिफिक ओशन में एयर प्रेशर कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है तो वो अच्छा होता है मॉनसून के लिए, वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन अगर सदर्न पैसिफिक ओशन में एयर प्रेशर कम हो गया तो वो नेगेटिव फैक्टर हो जाता है। उस जिस साल सदर्न ऑसिलेशन हो जाता है ना, उस साल मॉनसून वीक होता है। यही इसका फैक्टर है, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, है ना, कि जब जनरल कंडीशन नॉर्मल कंडीशन रहे तब तो ठीक है, लेकिन अगर सदर्न ऑसिलेशन हो गया तो क्या होगा, मॉनसून वीक होगा। तो सदर्न ऑसिलेशन है क्या कि सदर्न पैसिफिक ओशन का एयर प्रेशर कंपैरेटिवली लो हो जाता है इंडियन ओशन की तुलना में, ठीक है ना। तब तो उस साल ना साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है वो वीक होगा, और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड वीक होगा तो मॉनसून भी वीक होगा। तो सदर्न ऑसिलेशन का बनना मतलब मॉनसून का वीक होना। समझ गया ना ये बात, शॉर्ट में इतना ही याद रखो कि when southern oscillation takes place then the monsoon becomes weak or late। समझ गए। अब यहाँ देखो दो प्लेसेस का नाम दिया हुआ है, एक क्या दिया है, ताहिती, ये पैसिफिक ओशन में है, ठीक है ना, और डार्विन, ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट में ये टाउन है डार्विन। तो ये दोनों प्लेस पे ना प्रेशर का डिफरेंस स्टडी किया जाता है। ताहिती किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सदर्न पैसिफिक ओशन को। डार्विन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सदर्न इंडियन ओशन को। और इन दोनों के प्रेशर डिफरेंस को स्टडी करके बताया जाता है कि सदर्न ऑसिलेशन हुआ है कि नहीं, ठीक है ना। तो सदर्न ऑसिलेशन हमेशा नहीं रहता है, 3 साल 4 साल के बाद ये सदर्न ऑसिलेशन होता है। समझ गए, क्या लिखा हुआ है ना यहाँ पे देखो, 2 to 5 years, 2 to 5 years में कभी भी सदर्न ऑसिलेशन हो सकता है, और सदर्न ऑसिलेशन होगा तो मॉनसून वीक होगा। और जब सदर्न ऑसिलेशन होगा तो एक नया ओशन करंट दिखाई देने लगता है साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे, जिसको कहते हैं एल नीनो। ये वार्म ओशन करंट है, ठीक है। अगर सदर्न ऑसिलेशन नहीं हुआ रहता है तो पेरुवियन करंट चला करती है। पेरुवियन करंट कोल्ड ओशन करंट है जो पेरू के कोस्ट से चलती है ना, सदर्न हेमिस्फीयर से आते हुए साउथ पोल की तरफ से आते हुए पेरुवियन कोस्ट से ये चलती है। तो ये कोल्ड करंट अगर रहेगा ना तो एयर प्रेशर वहां पे हाई रहेगा। समझ गए, सदर्न पैसिफिक में एयर प्रेशर हाई है, ये किससे पता चलता है कि वहां पे कोल्ड ओशन करंट चलते रहेगी, जिसको पेरुवियन करंट कहते हैं। लेकिन पेरुवियन करंट नहीं चल के किसी साल क्या हो जाता है, एल नीनो चलना शुरू हो जाता है। एल नीनो इज अ वार्म ओशन करंट। समझ गए। अब जब वार्म ओशन करंट है मतलब वहां का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां पे लो प्रेशर होगा। तो इस तरह से लो प्रेशर बढ़ने से मॉनसून के लिए ये
अच्छा साइन नहीं है, मतलब ये निगेटिव फैक्टर हो गया। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड वीक होगा और इसीलिए मानसून भी वीक हो जाएगा। समझ गए? इसको शॉर्ट में इतना ही जानो, और तुम इसको इस पैराग्राफ को अच्छे से रीडिंग करोगे तब तुम्हें और अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक है, अब हम लोग को क्या, ये बॉक्स एक बार पढ़ लेना है। इस बॉक्स में क्या लिखा है देखो, El Nino. This is a name given to the periodic development of a warm ocean current along the coast of Peru. तो पेरू कहाँ है? साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्टल साइड में ये कंट्री है जिसका नाम है पेरू। साउथ अमेरिका का तुम मैप जरूर देखोगे। As a temporary replacement of the cold Peruvian current, El Nino is a Spanish word meaning the child and refers to the baby Christ, as this current starts flowing during Christmas. क्रिसमस मतलब 25 दिसंबर के आसपास ये फ्लो करना शुरू होता है। तो इसीलिए एल नीनो को क्या सदर्न हेमिस्फीयर में एल नीनो को क्या कहते हैं? बेबी क्राइस्ट कहते हैं। स्पेनिश वर्ड है ये बेबी क्राइस्ट, है ना। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्रिसमस जो है वो समर सीजन में होता है, क्योंकि सीजन जस्ट अपोजिट है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। The presence of the El Nino leads to an increase in sea surface temperature and weakening of the trade winds in this region. यही ना तुमको बताए कि अगर एल नीनो चलने लगा, ओशन करंट जो कि वार्म ओशन करंट है, तो सी के सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो लो प्रेशर हो जाएगा, और लो प्रेशर होने से वहां का जो ट्रेड विंड है वो वीक हो जाता है। तो जब भी ट्रेड विंड वीक होगा ना सदर्न हेमिस्फीयर का, जिसको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड अगर वीक होगा तो एडवांसिंग मानसून भी वीक होगा। तो सदर्न ऑसिलेशन के होने का मतलब क्या है कि सदर्न ऑसिलेशन हुआ तो मानसून वीक होगा। बस इतना ही जानो, ठीक है। आर यू लिसनिंग ऑल ऑफ यू? हरे राम। Yes, ma'am. आदित्य दास, Yes, ma'am. सब समझ रहे हो? इसको अच्छे Yes, से ma'am. रीडिंग करना, इस पैराग्राफ को, इस कॉलम को बहुत अच्छे से रीडिंग करो। I can read. हाँ, Yes, ma'am. सब कुछ समझ में आता है बहुत अच्छे से, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्लाइमेट। ये तुमको जब सदर्न ऑसिलेशन को तुम जाने हुए रहोगे ना, तो तुम जब भी मानसून आते रहता है ना, मानसून आने का टाइम जब होता है तो न्यूज़पेपर में सदर्न ऑसिलेशन के बारे में बहुत आता है। तो तुम अगर तुम्हारे नॉलेज में है कि सदर्न ऑसिलेशन होता क्या है, तो तुमको वो इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में, है ना। अब ये देखो, द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड विड्रॉल। ऑनसेट मतलब मानसून का आना, और विड्रॉल मतलब मानसून का लौटना। The monsoon, unlike the trade winds, are not steady winds. Steady मतलब लगातार चलने वाली, ठीक है ना। ट्रेड विंड क्या है? चाहे वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड हो या साउथ ईस्ट ट्रेड विंड हो, वो क्या है? स्टेडी विंड है, मतलब कंटिन्यूअस चलने वाली हवा है अर्थ सरफेस पे। लेकिन मानसून कंटिन्यूअस विंड नहीं है, ये क्या है? मानसून इज अ सीजनल विंड। एडवांसिंग मानसून मतलब जून जुलाई अगस्त के समय, जून जुलाई अगस्त सितंबर में एडवांसिंग मानसून को हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, और यही मानसून बाद में रिटर्न होने लगती है रेनी सीजन के बाद, तो उसको रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। तो मतलब मानसून का ना रिवर्सल होता है, एक बार ये सी टू लैंड है तो दूसरी बार में लैंड टू सी होता है, और ये सीजनल विंड है। इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस विंड लाइक ट्रेड विंड्स, but are pulsating in nature, affected by different atmospheric conditions encountered by it on its way over the warm tropical seas, है ना। मानसून विंड जो है वो एक बार उसका अराइवल होता है, दूसरी बार उसका रिट्रीट होता है, मतलब वापस लौटना होता है on the basis of difference in seasons. समर सीजन में क्या है? सी टू लैंड, और विंटर में क्या है बताओ?
land to sea. Are you listening? Yes, ma'am. All are not responding. The duration of monsoon is between 100 to 120 days. ठीक है ना? From June to mid September. मानसून का टाइम पीरियड क्या है? जून से लेकर मिड सितंबर तक. इस बार तो पूरा सितंबर तक चला है ना? तो ये 4 मंथ्स हो गए रेनी सीजन के, जिसको हम क्या कहते हैं? एडवांसिंग मानसून भी कहते हैं या रेनी सीजन कहते हैं. तो कौन से 4 महीने हैं बताओ रेनी सीजन के? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. हाँ, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. So around the time of its arrival, the normal rainfall increases suddenly and continues constantly for several days. This is known as the burst of monsoon. Burst मतलब अचानक से मानसून का रेनफॉल बहुत ही सडन और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेनफॉल कहेंगे इसको. क्या कहते हैं? बर्स्ट ऑफ मानसून. मतलब पहली बारिश जो होती है ना वो बहुत तेज होती है और कई दिनों तक भी चल सकती है, मतलब 2 दिन 4 दिन भी चल सकती है. तो ये क्या है? ये सडन इंक्रीज है रेनफॉल में, जो पहला रेनफॉल होता है जून महीने में. तो इसको क्या कहते हैं? बर्स्ट ऑफ मानसून. एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम प्री मानसून शावर. प्री मानसून शावर का क्या मतलब हो गया? कि मानसून के आने के पहले भी रेनफॉल हो सकता है और उसको क्या कहते हैं? प्री मानसून शावर. तो प्री मानसून शावर से ये मानसून शावर जो है एकदम डिफरेंट होता है, क्योंकि बिगिनिंग में इसमें क्या होता है? बर्स्ट ऑफ मानसून होती है, मतलब बहुत तेज बारिश होती है. The monsoon arrives at the southern tip of the Indian peninsula generally by the first week of June. ठीक है ना? जून के फर्स्ट वीक में इंडिया में ये केरला कोस्ट में आ जाती है मानसून. हाँ, अगर मानसून इधर अरेबियन सी से एंटर कर रही है तो सबसे पहले कौन से स्टेट को टच करेगी? केरला को. तो केरला का जो सदर्न पार्ट है वहां पे मानसून 1 जून तक पहुंच जाती है. Subsequently, it proceeds into the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. इंडिया का जो पेनिनसुलर शेप है ना, उसके वजह से मानसून 2 भागों में बट जाता है. अरेबियन सी की तरफ से एंटर किया तो उसको अरेबियन सी ब्रांच कहते हैं, और बे ऑफ बंगाल की तरफ से शिफ्ट एंटर करता है तो उसको क्या कहते हैं? बे ऑफ बंगाल ब्रांच उसका नाम दिया गया है. ठीक है ना? तुम यहाँ ये मैप देख सकते हो, देखो एक बार. ये मैप देख रहे हो ना? इधर से जो मानसून एंटर कर रहा है अरेबियन सी से, तो इसको इस ब्रांच को क्या कहेंगे? अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून. ठीक. और इधर बे ऑफ बंगाल से जो मानसून एंटर कर रहा है तो इसका नाम क्या पड़ गया? बे ऑफ बंगाल ब्रांच. लेकिन पहले देखो तो सब पूरा इंडियन ओशन से ही ये आ रहा है, लेकिन इंडिया के इस पेनिनसुलर शेप की वजह से ये ऐसे 2 अलग अलग पार्ट्स में इसका नाम दे दिया गया है, अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून. ठीक है ना? अब ये जो पोर्शन है यही है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड. यहाँ साउथ से इस तरह से चलने वाली हवा है, इसलिए इसको नाम दिया गया क्या? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड. और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इक्वेटर को क्रॉस करते के साथ ऐसे एडवांसिंग मानसून बन जाता है. समझ गए ना? तो जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है वो इक्वेटर को पार करने के साथ ऐसे डेविएट होता है इंडिया के तरफ या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तरफ, तो इसको कहते हैं मानसून. तो इसका ओरिजिन क्या है मानसून का? द मानसून ओरिजिनेट्स फ्रॉम साउथ ईस्ट ट्रेड विंड. ये एरिया है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का, और इक्वेटर पार करते के साथ वही उसी विंड का क्या नाम हो जाता है? मानसून विंड हो जाता है, जो इधर इंडिया के तरफ या साउथ ईस्ट एशिया के तरफ अट्रैक्ट होता है. ठीक है? अब इसके आगे देखो. The monsoon arrives at the southern tip of the Indian peninsula generally by the first week of June. Subsequently, it proceeds into 2, Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. The Arabian Sea branch reaches Mumbai about 10 days later on approximately 10th of June. इसका मतलब क्या हुआ?
कि अगर 1 जून को केरला कोस्ट पे मानसून आ जाती है तो मुंबई तक पहुंचने में कितना समय लगता है बताओ? 10 days. 10 days. ठीक है, दिस इज अ फेयरली रैपिड एडवांस, मतलब ये काफी जल्दी बढ़ा। इसका मतलब द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांसेस रैपिडली एंड अराइव्स इन असम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो मेघालय, असम, ये सब जो एरियाज है ना, वहां पे बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो भी पहुंच जाता है कब? जून में, फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही पहुंच जाता है। The lofty mountains causes the monsoon winds to deflect towards the west. इंडिया में क्या है? माउंटेन है ना, हिमालयन माउंटेन। तो हिमालयन माउंटेन की वजह से, एक और मैप देखो, यहाँ पे क्या है? हिमालयास। ये हिमालयन माउंटेन का एरिया है, ये नेपाल की तरफ, और इधर इंडिया में, इधर नॉर्थ वेस्ट में लेके पूरे अरुणाचल तक ये कौन सा माउंटेन फैला हुआ है? हिमालयन माउंटेन। ठीक है, तो हिमालयन माउंटेन की वजह से यहाँ से जो विंड एंटर करती है ना, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, वो इधर टर्न कर जाती है, गंगा वैली की तरफ टर्न कर जाती है। दिख रहा है ना तुमको? मानिया बताओ। Yes, ma'am. हाँ, तो इसको फिर से देखो, ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच इधर से एंटर की, बे ऑफ बंगाल से, तो सबसे पहले ये बांग्लादेश और शिलोंग और असम में पहुंच गई। इधर बहुत बारिश करती है और ये बहुत हेवी रेनफॉल वाला ये सारे स्टेट्स हैं। और इसके बाद ना ये इधर की तरफ टर्न हो जाती है। क्यों टर्न होती है? क्योंकि और नॉर्थ में ये जा ही नहीं सकती है, इधर हिमालय से वो ना घिरा हुआ है, समझ गए? तो हिमालय से बाउंडेड होने की वजह से ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो गंगा वैली में ऐसे टर्न हो जाती है और नॉर्थ वेस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसका रेनफॉल थोड़ा घटता चला जाएगा। शुरू में सबसे ज्यादा रेनफॉल इधर ईस्टर्न कोस्ट में, सबसे ज्यादा रेनफॉल, और पटना आते आते थोड़ा कम होगा, लखनऊ आते आते थोड़ा क्वांटिटी और कम होगा, और ऐसे कम होता चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक ये मानसून पहुंच जाएगी, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। और इधर से अरेबियन सी ब्रांच जो चलेगी वो भी इसमें ऐसे इधर से क्रॉस करते हुए पूरा यहाँ तक पहुंच जाती है। तो दोनों ब्रांच आकर के यहाँ पे मर्ज हो जाते हैं और यहीं पर इनकी जो स्ट्रेंथ है ना, रेनिंग कैपेसिटी, वो यहीं पे खत्म हो जाती है। मानसून कश्मीर तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, उसका सारा मॉइस्चर और उसका स्ट्रेंथ और उसका टाइम सब यहीं तक खत्म हो जाता है। ओके।